सुप्रभात मित्रों। आप सभी जानते हैं कि आज हम सभी छठा अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मना रहे हैं और कोरोना महामारी के दौरान हम लोग इस योगा दिवस पर घर से ही योग करें तो बेहतर है। और इसीलिए इस बार का जो योग थीम है वो है घर पर योग, परिवार के साथ योग। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी यही संदेश दिया है कि सभी लोग स्वस्थ रहते हुए अपने घर से अपने परिवार के साथ योग करें और दुनिया तक ये संदेश पहुंचाएं कि हम इस महामारी, कोरोना महामारी से लड़ने के लिए जितने भी हमने उपाय किए हैं उनमें से यह सबसे अच्छा उपाय है योग, जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है और हमारी जो अंदर समस्या है वो दूर होती है। और इसी के तहत आज मैं यह योग दिवस पर आप सभी को सुप्रभात कहते हुए इसकी शुरुआत करता हूं। और योग की शुरुआत मैं इस मंत्र उच्चारण के द्वारा करूंगा। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज की शुरुआत हम सूक्ष्म व्यायाम से करेंगे। सबसे पहले हेड एंड नेक मूवमेंट्स, लेफ्ट सेंटर, राइट सेंटर, लेफ्ट सेंटर, राइट center, or back, forward, back, forward. Now with your left, full circle. Now with your right, full circle. Now the movements of your hands, like this, 4 times. 1, 2, 3, 4. Now revert your palm. Now 1, 2, 3, 4. Now up, down, up, down, up, down. Now change your palm. Up, out, in, out, in. Now like this, out, in, out, in, out, in. मुट्ठी बंद करेंगे 2 बार क्लॉकवाइज, देन 2 बार एंटी क्लॉकवाइज। नाउ हाथों को बाहर ले आएंगे। 1, 2, 3, 4. Now 2 times shoulder movement, clockwise and anti-clockwise. Now the movement of your chest, 4 times right side, 4 times left side. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Now the movement of your hips, 3 times clockwise and 3 times anti-clockwise, like this. 2 and 3. Anti-clockwise, 1, 2, and 3. Now the movement of your knee joint, 1, 2, 3. Now the rotation, 3 times clockwise and 3 times anti-clockwise. Now the movements of your ankle joints with your right leg, up, down, up, down, up, down, up, down. Now 3 times clockwise movements.
times anti-clockwise. Now with your left leg, same, up, down, up, down, up, down, up, down. Now 3 times clockwise movements. Now 3 times anti-clockwise. Now the time is for relaxation. In relaxing posture, take deep breath. Now exhale slowly. धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ेंगे. एक बार और. Take deep breath. धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ेंगे. Now 3 times के लिए हम करेंगे सूर्य नमस्कार. Start with hand namaskar. Hands in namaskar mudra. Up. सांस को भरते हुए ऊपर. Down. Left leg back. Now both legs back. Knee down, chin down. Up. Okay, up. Now left leg forward. Like this. Now both legs forward. Up. Up. Now right leg back. Both legs. Now knee down, chin down. Now up. Up. Now right leg forward. Both legs forward. Up. Hands in Namaskar Mudra. Now the last one. Up. Down. Left leg back. Both legs back. Knee down, chin down. Up. Up. Now left leg forward. Both legs. Up. सूर्य को समर्पण. भगवान सूर्य का वंदन करते हुए हम आज इस योगासन की शुरुआत करेंगे. अगेन डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज. टेक डीप ब्रीथ. एक्सहेल स्लोली. धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़ेंगे. Now prepare your body and mind for asanas. We will start with a standing posture. Both legs together. The first asana is Tadasana. Both legs together. Both arms up. Chin your palm up. Lock your fingers. Now raise your heels. Look straight. Focus in front of you on any object. Just concentrate. Maintain the balance. 5, 4, 3, 2, 1. Come back. Second asana is Vrikshasana, tree pose. Like this. Left leg को हम अपने groin region के पास ले आते हैं. Maintain the balance. Now hands in Namaskar Mudra. धीरे धीरे ऊपर की तरफ. Maintain the balance. Focus on any object. Look straight. Maintain the balance. यहाँ पे आपके जीवन में संतुलन आता है, अनुशासन आता है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है. 5, 4, 3, 2, 1. Come back. Now with your right leg.
up. Maintain the balance, look straight. जीवन में संतुलन बनाने के लिए यह आसन बहुत ही आवश्यक है। 5, 4, 3, 2, 1. Come back. Next asana is Kati Vakrasana. Both legs together. Left arm up. Change your palm up. Now bending to your right side. Now feel the stretching to your left side. 5, 4, 3, 2, 1. Come back. जैसे गए वैसे वापस आना है. Now raise your right hand. Change your palm up. now bending to your left side. Feel the stretching to your right side. 5, 4, 3, 2, 1. Come back. बैक पेन के लिए बहुत ही अच्छा आसन है. प्लेस योर हैंड जस्ट अबव योर हिप ऑन योर बैक. सांस को भरते हुए पीछे की तरफ जाते हैं यहाँ पर. 5, 4, 3, 2, 1. Come back. Now the counter pose of this asana is Padhastasana. Leg little apart, both hands up. now bend करेंगे with your lumbar region. lumbar region से हेल्प लेते हुए धीरे धीरे बेंड करेंगे नीचे की तरफ. Padhastasana. now feel the stretching in your calf muscles, quadriceps muscles. बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेचिंग मिलती है. आपके पैर की स्ट्रेंथ बढ़ती है. come back. Now the next asana is warrior pose. वीर भद्रासन. एक योद्धा की तरह हम इसमें युद्ध भूमि में उतरते हैं. राइट लेग को बाहर निकालते हैं. लेफ्ट लेग लिटिल इनसाइड. Now bend your right leg at 90 degree like this. Now focus your eyes on your right middle finger. Right middle finger को आपको फोकस करना एक योद्धा की तरह. वॉरियर पोज. वीर भद्रासन. लेफ्ट लेग बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा. फील द स्ट्रेचिंग इन योर quadriceps muscles. 5, 4, 3, 2, 1. Come back. Now with your left, right leg lifted inside. Left leg straight. Now bend your left leg. Now focus your right middle finger. 5, 4, 3, 2, 1. Come back. Now the next asana is Utkartasana. Both hands in front of you, parallel to the ground. Both legs little apart. Now raise your heels. Now bend your knees. This is also called chair pose. Assume that you are sitting on a chair. आपके घुटनों के लिए बहुत ही अच्छा आसन है. इसमें स्ट्रेंथ आती है. जिनको घुटने की बीमारी हो उन्हें यह आसन जरूर करना चाहिए. 5, 4, 3, 2, 1. Come back. Now the next asana is नटराज आसन. यहाँ पर राइट लेग को होल्ड करना होता है. लेफ्ट हैंड पैरेलल टू द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ यू. नाउ स्ट्रेच योर right leg while maintaining your balance. Maintain the balance. Look straight. Come back. Now with your left leg, right hand parallel to the ground in front of you. Now stretch your left leg and maintain the balance. पैरों के लिए बहुत अच्छा आसन है. स्ट्रेंथ बढ़ती है आपके पैरों की. Come back. यहाँ पर हमारा स्टैंडिंग पोस्चर खत्म होता है. अब हम सिटिंग पोस्चर करेंगे और बैठ जाएंगे.
सेटिंग पोस्चर में दंडासन रिलैक्सिंग पोस्चर, यहाँ हम रिलैक्स करते हैं पूरी तरह से शरीर को, शांत, एकदम शिथिल, और यहाँ पर एक गहरी सांस भर करके शरीर को एकदम शांत करेंगे। टेक डीप ब्रीथ, एक्सेल स्लोली, धीरे 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 धीरे। जो आसन के दौरान आपकी धड़कनें बढ़ जाती हैं, उसे डीप ब्रीदिंग द्वारा हम ठीक कर पाते हैं और आपकी हृदय गति बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। तब हम अगले आसन के लिए तैयार हो जाते हैं। एक बार और, टेक डीप ब्रीथ, धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़ेंगे। बिल्कुल भी तनाव नहीं, चेहरे पर बहुत ही सहजता, बहुत ही सरलता, तन्मयता से हम आसन किया करते हैं। Now prepare your body and mind for sitting postures. Both legs together, both hands by side of your body. The first asana is Dandasana. Like this, stretch your both legs towards you. Both hands straight, spine, neck and head straight. Like this. Maintain the posture. 5, 4, 3, 2, 1. Come back. Now the next asana is Vakrasana. Right leg को यहाँ पर घुटनों के पास, right hand just behind you. Now left hand से लॉक कर लेंगे। Now पीछे की तरफ ट्विस्ट करेंगे। This is also called twisting pose. जिस तरह कपड़े को निचोड़कर हम मैल निकालते हैं, उसी तरह इस शरीर से जो मैल है वो पूरी तरह से निकल रहा है। Just maintain. Look to your back. Now come back with your head first, then left hand, then right leg. Now same way, left leg को now lock your left leg with your right hand. लेफ्ट हैंड आपका पीछे रहेगा। नाउ ट्विस्ट योर बॉडी फुली बैकवर्ड और अपने मैन को निकालते हुए आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। कम बैक विद योर हेड फर्स्ट, देन राइट हैंड, लेफ्ट लेग। रेडी फॉर भद्रासन, बटरफ्लाई पोज। अपने दोनों पैरों को अपने ग्रोइन रीजन के पास इसको होल्ड कर लेंगे। आपकी बॉडी छाती बाहर की तरफ, स्पाइन, नेक एंड हेड स्ट्रेट। क्लोज योर आईज 100 टाइम्स के लिए। बटरफ्लाई, भद्रासन बहुत ही अच्छा आसन उन स्त्रियों के लिए जिनको मासिक की समस्या रहती है, जिन्हें यूरिन इनकॉन्टिनेंस की समस्या रहती है, उनके लिए यह आसन बहुत ही लाभदायक है। उन्हें यह आसन जरूर करना चाहिए। योग से हम एक दूसरे से जुड़ पाते हैं और यह एक ऐसा विज्ञान है जिसके द्वारा हम बॉडी और माइंड दोनों का रिलेशन स्थापित करने में सहज हो पाते हैं। और योग वर्कआउट प्रक्रिया नहीं है। हम लोग बोलते हैं वर्कआउट करते हैं, वर्कआउट मीन्स एक्सरसाइज। योग है वर्किंग, जहां पर हम अपने अंदर की ऊष्मा, अंदर की ऊर्जा, अंदर की ताकत को पहचानते हैं, उसे जगाते हैं। और सच पूछिए तो आत्मा रूपी जो ताकत है, उससे हम साक्षात्कार करने में सफल हो पाते हैं। और जब हम आत्मा से साक्षात्कार कर पाते हैं विद रिलेशन टू योर बॉडी एंड माइंड,
तब हमें उस परमात्मा की अनुभूति होती है। 100 टाइम्स के लिए ट्राई टू टच योर टोज विद योर हैंड। Come back. Now open your legs. Now जानु सिरासन, राइट लेग यहां पर अप और धीरे धीरे नीचे आते हैं। Come back. Now with your left leg, जानु सिरासन। जानु मीन्स आपके घुटने, सिरा मतलब आपका माथा। धीरे धीरे नीचे की तरफ। Come back. यहाँ पर अब हम वज्रासन करेंगे। लेफ्ट लेग को मोड़ के उस पर धीरे से बैठ जाते हैं, राइट लेग को मोड़कर। दिस इज द वज्रासन। आपकी स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। दिस इज द ओनली आसन विच यू कैन परफॉर्म आफ्टर मील। खाना खाने के बाद यही एक आसन है जिसे आप कर सकते हैं और जो भोजन है वो आपका अच्छी तरह से पच जाता है। तो मेरी ये राय है कि आप सभी जब भी खाना खा लें इस तरह से वज्रासन में बैठें ताकि आपका भोजन जल्द से जल्द और अच्छी तरह से पच सके। डाइजेशन अच्छा होता है, इंप्रूव होता है वज्रासन। नाउ द नेक्स्ट आसन इज रैबिट पोज, शशांकासन। बोथ आर्म्स अप, कमिंग टू डाउन। धीरे धीरे स्लाइडिंग योर हैंड, फोरहेड ऑन द ग्राउंड। यह भी आसन आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा है। नाउ कमिंग बैक व्हाइल स्लाइड डाउन योर हैंड। धीरे धीरे वापस। नाउ यहां पर करेंगे सिंहासन। मुद्रा भी बोलते हैं। एक बार और करेंगे। जीभ को बाहर, आंख को ऊपर, पूरी तरह से। कम बैक। हम लोग अब करेंगे उष्ट्रासन। उष्ट्रासन में सबसे पहले दाहिने हाथ को ऊपर से ले जाते हुए हम यहाँ पर अपने एंकल्स को पकड़ लेते हैं और फिर बाएं हाथ को ले जाते हुए हम लेफ्ट और बॉडी को पूरा छोड़ के। बहुत ही बेहतरीन आसन है बैक पेन के लिए। जिन्हें भी बैक पेन है वो इस आसन को जरूर करें। उष्ट्रासन, कैमल पोज, लंबर पेन, बैक पेन के लिए बहुत ही अच्छा आसन। 5, 4, 3, 2, 1, come back. Now the counter pose of this asana is Marjari asana, cat pose. Like this. जब हम ऊपर की तरफ मूवमेंट करेंगे तो ये सांस अंदर लेंगे, ब्रीद इन करेंगे और यहाँ पर ब्रीद आउट करेंगे। 10 टाइम्स के लिए ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट विद योर मूवमेंट। हम महंगे महंगे मसाज पार्लर में जाते हैं सिर्फ इस मसाज को लेने के लिए और यहाँ पर हम अपने स्पाइन को फुल मसाज दे रहे हैं। जो आपकी 33 वर्टिब्रे हैं टॉप टू बॉटम, उनको बहुत ही बेहतरीन मसाज यहाँ पर मिलता हुआ कैट पोज में। और यहां से हम करेंगे मयूरासन। मयूरासन आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, शरीर को नियंत्रित करता है,
संतुलन के लिए बहुत अच्छा है। आपके अंदर एक अनुशासन आता है, संतुलन आता है, डिसिप्लिन मेंटेन होता है। मयूरासन। कम बैक। यहाँ पर मकर आसन में रेस्टिंग पोस्चर में रेस्ट करेंगे। प्रोन पोस्चर में हम आ चुके हैं और प्रोन पोस्चर का ये रेस्टिंग आसन है मकर आसन, रिलैक्सिंग पोज। बॉडी को पूरी तरह से यहाँ पर ढीला छोड़ देंगे। जो सांसें चल रही हैं उनको स्थिर करने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल नॉर्मल करने का। जो हमारी हृदय गति है जो अभी 80 और 90 के बीच है उसे हम 70-72 तक ले आएंगे। एक गहरी सांस भरेंगे। टेक डीप ब्रीथ। एक्सहेल स्लोली, धीरे-धीरे सांसों को बाहर। रिलैक्स योरसेल्फ। जस्ट रिलैक्स। रिलैक्स। Just relax. Now prepare your body and mind for prone posture. The first asana is Niralambasana. Both legs together. Now elbows together. Now place your hand just below your chin. This is the asana which helps you in सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। जिनको भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है वो इस आसन को जरूर करेंगे। इसे टीवी पोज भी बोला जाता है। जब भी आप टीवी देख रहे हैं, टेलीविज़न पर हैं, आप इस आसन में देख सकते हैं ताकि आपकी सर्वाइकल की प्रॉब्लम दूर हो सके। बहुत ही अच्छा आसन सर्वाइकल वालों के लिए। Now ready for next आसन, भुजंगासन। Now place your hands by side of your shoulder, chin on the ground, both legs on the ground. Now raise your upper body up to your chest level. Chest level तक अपनी बॉडी को उठाना है। Now दोनों हाथों को maintain भुजंगासन, cobra pose, just like a cobra. Maintain the posture. 5, 4, 3, 2, 1. Come back. Now ready for next आसन, सर्पासन। थोड़ा सा हाथों को आगे ले आएंगे और यहाँ पर बॉडी को पूरी तरह से ऊपर उठा देते हैं। स्नैक पोज, सर्पासन। Feel the contraction in your lumbar region and stretching in your abdomen area. बहुत ही बेहतरीन आसन लंबर पेन, बैक पेन के लिए। जिनको भी बैक पेन है वो इस आसन को जरूर करेंगे। बल्कि मैं ये कहूँगा प्रोन पोस्चर के सारे आसन बैक पेन वाले जरूर करेंगे। Now come back. Now ready for next आसन, boat pose. Both hands just put your hand. Now raise your both hands. Boat pose, Naukasana. This improves your digestion again. 5, 4, 3, 2, 1. Now, next asana is Shalabhasana, locust pose. Place your both hands just under your thighs. Now, chin on the ground. Raise your both legs. This is like a locust pose, Shalabhasana. 5, 4, 3, 2, 1. Now ready for धनुरासन। लेफ्ट लेग को होल्ड करते हैं यहाँ से, राइट लेग को, और धीरे धीरे अपर बॉडी को ऊपर उठाते हैं और देन लोअर बॉडी को। बहुत ही बेहतरीन आसन है। जिन्हें डाइजेशन की समस्या से जूझना पड़ता है, जिन्हें बैक पेन की समस्या से जूझना पड़ता है, उनके लिए आसन रामबाण है। और
पैरों की समस्या, साइटिका वगैरह भी इससे दूर हो जाता है। साथ ही साथ सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के लिए भी आसन बहुत ही लाभदायक है। 5 4 3 2 1 कम बैक। धीरे से हम सुपाइन पोस्चर में आएंगे और यहाँ पर शव आसन में आ जाएंगे। पैरों को खुला छोड़ देंगे, हाथ आपके पूरे खुले, पाम फेसिंग टू स्काई। पूरी तरह से बॉडी को ढीला छोड़ देते हैं। आपका शरीर पर कोई नियंत्रण नहीं रह जाता है। जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ, जस्ट रिलैक्स। महसूस करिए कैसे सांस अंदर जा रही है और कैसे सांस अंदर आ रही है। जस्ट रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ। एक बार यहां पर गहरी सांस लेंगे। इनहेल, एक्सहेल। धीरे धीरे सांसों को बाहर। जस्ट रिलैक्स। पूरी बॉडी को पूरी तरह से ढीला छोड़ देते हैं। शव आसन, जस्ट लाइक ए डेड बॉडी। This is the relaxing posture, relaxing pose in supine posture. Now prepare your body and mind for supine posture. Now the first asan is Naukasana, boat pose, both legs together, both hands together, both hands just above your thighs. Now raise your legs up to 30 degrees like a boat. Naukasana, boat pose. 5 4 3 2 1. Come back. Now fold your legs. Now ready for Pavan Muktasana. लोगों को गैस की समस्या हो जाती है, उन्हें यह आसन जरूर करना चाहिए। Now दोनों हाथों से बांध लेंगे। Now try to touch your forehead or knee or chin. Come back. Now ready for bridge pose, Setu Bandhasana. Now hold your ankles here. Now raise your lower body like this. हम यहाँ पर एक सेतु का निर्माण करते हैं ताकि नीचे से या ऊपर से लोग आ जा सके और आपके शरीर का जो संतुलन है वो बिल्कुल बना रहे। सेतु बंधासन, ब्रिज पोज। 5 4 3 2 1. Come back. Now you can relax. Now ready for उत्तान पादासन। पैरों को धीरे धीरे 90 डिग्री पर ले आएंगे। उत्तान पादासन। पैरों की समस्या के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। आपके पैरों को स्ट्रेंथ देता है, घुटनों को स्ट्रेंथ देता है और आपकी कमर में फ्लेक्सिबिलिटी लाता है। नाउ कम बैक। धीरे धीरे वापस। नाउ रेडी फॉर सर्वांगासन, जहां पर अपने पूरे शरीर का भाग अपने कंधे पर दे देते हैं और बॉडी को धीरे धीरे ऊपर ले आते हैं। पहले 90 डिग्री और धीरे से पूरी बॉडी को हम ऊपर उठा लेते हैं। सर्वांगासन। जिन्हें भी असमय सफेद बालों की समस्या है वो इससे दूर होती है। बच्चों को यह आसन जरूर करना चाहिए। उनकी बुद्धि प्रखर होती है, खून का दौड़ान ब्रेन की तरफ अच्छी तरह से होता है। बहुत ही अच्छा आसन है और हम यहाँ से
अगले आसन की तरफ बढ़ेंगे जिसका नाम है हल आसन, प्लाउ पोज। धीरे धीरे पैरों को भूमि की तरफ लाते हुए और यहाँ पर while coming back with your support of your both hands, धीरे धीरे यहाँ से वापस, बिल्कुल भी हड़बड़ी में नहीं वापस होंगे और धीरे धीरे वापस। यहाँ पर सुपाइन पोस्चर के आसन खत्म हो जाते हैं। थोड़ा सा साइकिलिंग करेंगे 10 टाइम्स के लिए, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। आपके पैरों को स्ट्रेंथ देने के लिए, आपकी मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए। एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स। दोनों पैरों से बड़ा सर्किल बनाएंगे क्लॉकवाइज, नाउ एंटी क्लॉकवाइज। कम से कम इसे 5 बार करें। मैं यहाँ पर 3 बार मैंने आपको दिखाया करके। नाउ फॉर रिलैक्सिंग, शवासन में आ जाते हैं। यहाँ पर जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ, रिलैक्स योरसेल्फ। यहाँ पर एक गहरी सांस भरेंगे। टेक डीप ब्रीथ। धीरे धीरे छोड़ेंगे सांस को बाहर। बॉडी को पूरी तरह से ढीला छोड़ देते हैं। चेहरे पर कोई तनाव नहीं, बहुत ही सहजता, बहुत ही सरलता के साथ हम किसी भी आसन को करते हैं। यहाँ पर पूरी तरह से रिलैक्स करना है इस शरीर को। now मैं जो बोलूंगा आपका ध्यान वहां पर, आपकी आंखें बंद होंगी, आपका ध्यान मेरी आवाज पर, और आपका ध्यान वहां जाएगा जो मैं बोलूंगा। हमारे साथ आप एक सफर पर चलेंगे। Now bring your awareness to your right toe. Now bring your awareness to your right knee, right thigh, right shoulder, right elbow, right palm. Now bring your awareness to your right left toe, left knee, left thigh, left shoulder, left elbow, left palm. Now bring your awareness to your genital area, your lower abdomen area, your chest area, now your neck area, your mouth, your nose area. यहाँ पर महसूस करेंगे सांस कैसे जा रही है अंदर और कैसे बाहर आ रही है। एक गहरी सांस भरते हुए now bring your awareness to your eyes. अपने अंदर को पहचानना है, अपने अंदर की शक्ति को, अपने अंदर की ऊर्जा को, उष्मा को, अपने अंतर मन को पहचानना है। Everything is inside you. जो आप बाहर खोजते हैं वो कहीं और नहीं, वह आपके अंदर निहित है। वो शक्ति आपके अंदर है सब कुछ पाने की। Just identify yourself
अपने अंतर्मन को पहचानिए। नाउ फाइनली ब्रिंग योर अवेयरनेस टू योर माइंड, योर ब्रेन। आप किसी भी विकार से अब दूर हो चुके हैं, पॉजिटिव एनर्जी से भर चुके हैं। जो बीमारी थी, जो दुविधा थी, जो डर थी, सारी चीजें निकल चुकी हैं। फ्री फ्रॉम ऑल द नेगेटिव एनर्जी। आपके अंदर एक नवीन ऊर्जा, ऊष्मा का उत्साह हो चुका है और आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। सोएंगे बिल्कुल भी नहीं, धीरे से उठ जाएंगे और सुख आसन में बैठ जाएंगे। ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे और 3 बार यहाँ पर ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे ताकि शरीर में जो आपको शव आसन के दौरान शिथिलता आ गई, यहाँ पर थोड़ा एक्टिव हो जाएंगे। 3 बार हनुमान जी की शक्ति यहाँ पर लाते हुए और यहाँ से हम करेंगे प्राणायाम की शुरुआत। कपालभाति करेंगे 100 टाइम्स के लिए। पेट को बाहर, सांसों को, पेट को अंदर, सांसों को बाहर। कपालभाति। कपालभाति एक शुद्धि क्रिया है, क्लींजिंग प्रोसेस है, जहां पर आपके माइंड का डर्ट, जो भी थोड़ा बहुत विकार होते हैं, जो ईर्ष्या होती है, जो क्रोध होता है, एनीथिंग विच इज इनसाइड योर ब्रेन, वह दूर हो जाता है बिल्कुल। आपका रक्त संचार बहुत तेजी से बढ़ता है और इसके द्वारा पूरे मार्ग की, पूरी नलियों की सफाई हो जाती है और ब्रेन बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। कपालभाति, इससे आपका वजन भी कम होता है, आपके इंटरनल ऑर्गन्स एक्टिव हो जाते हैं। 50 टाइम्स के लिए मोर। Now the next pranayam is Anulom Vilom. In Pranay Mudra, this is the Pranay Mudra. First and second finger आपको मोड़ के रखना है, last 2 fingers up. Now close your nostril with your right thumb. Now start Anulom Vilom. बहुत ही सहजता से, कोई भी तनाव नहीं, चेहरे पर एक खुशी। जिनको अवसाद की समस्या रहती है, डिप्रेशन की, जिनको स्ट्रेस होता है, जिनको साइकोमैटिक डिसऑर्डर होते हैं, उनके लिए आसन बहुत ही अच्छा है, यह प्राणायाम बहुत अच्छा है।
आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नियंत्रित रखता है यह प्राणायाम। अनुलोम विलोम आपके फेफड़े का वॉल्यूम बढ़ता है, फेफड़े की ताकत बढ़ती है, आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। और इस कोरोना महामारी के दौरान यह आसन रामबाण है। जिनको भी सांस की समस्या है वही आसन बहुत ही सहजता से करें। पॉजिटिव एनर्जी का संचार पैदा करता है आसन आपके अंदर। पूरे शरीर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड एकदम तेजी से दौड़ने लगता है, जिससे शरीर के सारे अंग पूरी तरह से एक्टिव हो जाते हैं और आपका माइंड बिल्कुल गतिशील रहता है। स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। रेडी फॉर उज्जयी प्राणायाम। जिनको भी थायराइड की समस्या रहती है, गले से भीतर गले में घर्षण करते हुए हम इसमें सांस अंदर की तरफ भरते हैं ताकि हमारी जो थायराइड ग्लैंड है वो एक्टिव हो सके। नीचे से ऊपर की तरफ हम इसको शुरुआत करते हैं और ऊपर से नीचे तक हम रिलैक्स होते हैं। सबसे पहले सांस को अंदर भरते हैं और पूरी तरह से सांस को बाहर छोड़ते हुए हम अपने गुदा द्वार, अपने पेशाब के पखाने के रास्ते को पूरा बंद करते हुए, बिल्कुल खींचते हुए पेट को अंदर खींचेंगे और गले को बंद कर लेंगे। सांस को अंदर relax from top to bottom. Now ready for Bhramari Pranayam. Close your eyes, close like this. 2 बार करेंगे माँ की ध्वनि के साथ, अपनी माँ को याद करते हुए। Now feel the vibration in your mind. इस प्राणायाम को भी जिन्हें स्ट्रेस है, जिन्हें इंसोम्निया है, जिन्हें एंजाइटी है, जिन्हें डिप्रेशन है, उन्हें जरूर करना चाहिए। आपका मानसिक तनाव कम होता है, आपका बॉडी और माइंड का संतुलन बिल्कुल सही हो जाता है और ब्रेन की सारी समस्या दूर हो जाती है।
ओम का प्रण करेंगे 3 बार। सबसे पहला ओम जो हमारे अंदर अपनी आत्मा है उसको समर्पित होगा। दूसरा ओम समर्पित होगा भगवान सूर्य को, जिन्हें हम साक्षात रूप में देख पाते हैं। और तीसरा ओम समर्पित होगा उस सूर्य से भी परे परम पिता परमात्मा परमेश्वर के लिए। स्पाइन स्ट्रेट, चेहरे पर कोई भी तनाव नहीं, चेहरे पर खुशी, सरलता, सहजता झलकती हुई। हैंड्स इन ज्ञान मुद्रा, 2 मिनट का ध्यान। जस्ट कॉन्सेंट्रेट बिटवीन योर बोथ आईब्रोज। Just focus the light in front of you. Try to focus between your both eyebrows. Just concentrate. Thoughts will come. Let them go. Don't hold them. Just concentrate between your both eyebrows. To the level of your eyes. Now look around. Enjoy the light. बंद आंखों से जो रोशनी दिख रही है आपको, उसका आनंद लीजिए। बंद आंखों से चारों तरफ देखिए। अपने माता पिता को याद करते हुए उनका चरण स्पर्श करेंगे। नाउ हैंड्स इन नमस्कार मुद्रा। और आज के इस योग का हम यहीं पर समापन करेंगे एक मंत्र द्वारा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। Just rub your palm. Now put on your eyes
enjoy the light after closing your eyes. Now slide down your hand. Now again enjoy the light with your closed eyes. Slowly open your eyes. धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे. Thank you. Namaskar.